Hello everyone, in this video we are going to map the continent of South America. We have already covered the map of North America and the Central America. So let's begin. एक करेक्शन आप लोग कर लीजिए. इन माई प्रीवियस वीडियो इन विच आई हैव कवर्ड द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैंने आपको बोला था कि माउंट मैकेंजी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका. दैट वाज रॉन्ग. इट वाज माउंट मैकिनले which was later renamed at Mount Denali. So Mount Denali or Mount McKinley is the highest peak of North America, not Mount Mackenzie. So sorry for that. Make sure कि आप लोग इस करेक्शन कर लेंगे. Now we are starting with the map of South America. South America is the fourth largest continent of the world, okay, and it is mostly triangular in shape, and it is situated in the southern hemisphere. Basic information, okay. There are 12 independent countries in South America. These are, here you can see, Brazil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, नीचे Argentina, then Peru, then Ecuador, then Colombia. Here you can see this is Venezuela, then Guyana, Suriname, and then French Guiana. French Guiana is a French satellite station, satellite launching station, okay. So if we talk about the Brazil, Brazil is the largest country of this continent, and it is the fifth largest country of the world in terms of both area as well as population. Brazil, with its capital Brasilia, is the world's largest coffee producer, and two major cities of Brazil are, here you can see, this is Rio de Janeiro and Sao Paulo. Sao Paulo is the largest town of this country, and one thing you must remember that Brazil shares border with every country of this continent except Ecuador and Chile. Okay, this is Brazil. ये सारी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट इक्वाडोर, और यहाँ पे जो चिली है उसको छोड़ के. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज अर्जेंटीना. अर्जेंटीना इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट country of this continent, okay, with its capital Buenos Aires. Then Chile. Chile is a long narrow strip of land. Here you can see it is a long narrow strip of the land surrounded by the Pacific Ocean from the one side. एक तरफ यहाँ पे this is Pacific Ocean, and with its capital Santiago. This is Santiago, okay, and it is known for its Mediterranean climate and also for the wine production. Next, if we talk about the Uruguay, Uruguay with its capital Montevideo. Then Paraguay. Paraguay is the landlocked country with its capital Asuncion. This is Asuncion. And then Bolivia. Bolivia with its capital La Paz is also the landlocked country. Okay, it is entirely landlocked country in this region. Then if we talk about the Paraguay, Paraguay with its capital Lima. Then this is Ecuador, from where the equator passes. This is zero line, equator line passes from Ecuador, and then with its capital Kyoto. Then Colombia. Colombia की capital है Bogota. Okay. Then Venezuela with its capital Caracas. Then Guyana with its capital Georgetown, and then Suriname. This is Suriname with its capital Paramaribo. Here you can see Suriname with its capital Paramaribo. Okay, these are the countries of South America. One thing you must notice here that Bolivia and Paraguay both are the landlocked country of this continent. Then if they ask which country do not share border with Brazil, so only two countries, Ecuador and Chile, they do not share border with Brazil.
And next, if they will ask that which country of South America shares boundary with both Pacific Ocean and Atlantic Ocean, then this is Colombia. Colombia shares both Pacific as well as Atlantic Ocean. Okay, so make sure you remember all these facts. एंड फ्रेंच गियाना में हमारा ये फ्रांस का लॉन्चिंग स्टेशन क्यों है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों है, बिकॉज ये यहाँ से इक्वेटर लाइन यहाँ पास से, इसके पास से इक्वेटर लाइन पास होती है, और इक्वेटर पे एज वी ऑल नो दैट कॉरियलिस फोर्स नहीं होता है और कम होता है, और एंड देयर इज़ ऑल्सो अ सी ऑन दी राइट ऑफ द फ्रेंच गियाना के राइट में यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। तो अगर कोई मिशन फेल भी होता है तो जो डेब्रिस है दैट विल फॉल्स इनटू द ओशियन, सो दैट्स वाई यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड्स दी physical features of South America. Then South America is surrounded by both North and South Atlantic Ocean. ऊपर ये North Atlantic है and then South, so it shares border, or it's surrounded by the Atlantic Ocean, both North and South Atlantic on the eastern side. This is eastern side, okay, and on western side it is surrounded by the Pacific Ocean. This is Pacific Ocean, and here you can see this is a equator, 0-degree equator line which passes through the northern part of continent, and यहाँ पे नीचे this is Tropic of Capricorn which runs roughly through the middle, यहाँ मिडिल से पास होता है, ओके। एंड इक्वेडोर इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है, देन हियर यू कैन सी इक्वेटर passes through the Ecuador, then Colombia, and then Brazil. So you can remember with ECB, Ecuador, Colombia and Brazil. and जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास होता है, तो इट पासेस थ्रू दी चिली, दिस इज चिली, देन अर्जेंटीना, देन this line, Chile, Argentina, and then Paraguay, and then Brazil. So you can remember with Chile, Argentina, cap B, okay, Chile, Argentina, Paraguay and Brazil. अगर हम मेजर आइलैंड्स देखें साउथ अमेरिका के, तो हियर यू कैन सी दिस इज गैलापागोस island, okay, and it is near the equator. और यहाँ पे ये जो यहाँ पे चिली है, चिली के सेंटर में एक आइलैंड है, दैट इज द हुआन फर्नांडिस आइलैंड, ओके, हुआन फर्नांडिस आइलैंड है, it is in the near the Chile, center of the Chile, and it is in the Pacific Ocean, ये याद रखना। then further south में अगर आएंगे तो here you can see this is Tierra del Fuego, okay, Tierra del Fuego, so this is in the Southern Ocean में है, this is Southern Ocean, and then this is Falkland Island, दिस इज़ इन दी साउथ अटलांटिक ओशियन, और ये इस पे यूके और अर्जेंटीना के बीच में डिस्प्यूट चलता है इस आइलैंड को लेके। देन अगर ऊपर देखें तो यहाँ पे ये जो वेनेजुला है, यहाँ पे एक आइलैंड है ट्रिनिडेड आइलैंड, ट्रिनिडेड आइलैंड, ओके। सो ट्रिनिडेड आइलैंड इज इन दी नियर दी वेनेजुला इन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर हम फर्दर साउथ में देखें तो यहाँ पे एक ड्रेक पैसेज है, ओके। जो ड्रेक पैसेज है दैट इज़ एक स्ट्रेट है जो विच सेपरेट साउथ अमेरिका को, जो ये साउथ अमेरिका को और अंटार्कटिका को सेपरेट कौन करता है, ड्रेक पैसेज सेपरेट्स साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका,
उसके बाद यहाँ पे यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट ऑफ मैगलन. ओके, सो दिस स्ट्रेट विच सेपरेट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका विथ अदर पार्ट्स ऑफ south of it. So this is Strait of Magellan. Then यहाँ सबसे ऊपर गियाना हाईलैंड है, देन ब्राज़ीलियन हाईलैंड है. ओके, और देन पैटागोनिया है, एंड देन पैम्पास है, और देन ब्राज़ील है. तो एक बार इनका सीक्वेंस भी याद रखना कि सबसे नीचे पैटागोनिया है, देन पैम्पास है, एंड देन ब्राज़ील हाईलैंड है. ओके, एंड देन यहाँ पे माटो ग्रोसो है. सो माटो ग्रोसो प्लेट्यू, ये एक एंशियंट इरोजनल प्लेट्यू है. सवन्ना ग्रासलैंड यहाँ पे मिलते हैं. कैटल रेजिंग गोल्ड डायमंड रिजर्व, इसके लिए ये जाना जाता है. ओके, ये बोलिवियन प्लेट्यू है, ये तो पता ही है. ओके, सो नेक्स्ट अगर हम देखें मेजर माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका. ओके, सो दीज हियर यू कैन सी दिस इज एंडस माउंटेन, दिस इज एंडस माउंटेन रेंज. द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन है. फर्स्ट एज वी ऑल नो दैट हिमालयाज, एंड जो एंडस माउंटेन है इट स्प्रेड ओवर दी 7 कंट्रीज, एंड दीज आर कौन कौन सी है, वेनेजुला, कोलंबिया, यहाँ पे दिस इज ऊपर वेनेजुला, कोलंबिया, देन अपना इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू, चिली. ओके, एंड देन अर्जेंटीना. सो ये 7 कंट्रीज में है. इसके अलावा हियर यू कैन सी दिस इज Aconcagua. Aconcagua is an extinct volcano. It is the highest peak of the western hemisphere. Okay, then here यहाँ पे एक अर्जेंटीना में एक माउंट ओजस डेल सेलाडो. ओके, ये भी है. दैट इज़ द हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है इन द वर्ल्ड ऑफ अर्जेंटीना. ओके, देन यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ गियाना हाईलैंड, डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है गियाना हाईलैंड. ओके, एंड देन पैटागोनिया जो है दैट इज़ इन दी साउथ में है. इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट है. पैटागोनिया इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ का. इट इज़ ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द एंडस माउंटेन. यहाँ पे एंडस माउंटेन है और इसके लीवर्ड साइड में है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश नहीं होती है. वेरी ड्राई रीजन है ये. ठीक है, देन ऊपर जो है दैट इज़ पैम्पास. दिस इज़ द पैम्पास ग्रासलैंड. यू माइट हैव हर्ड दैट टेम्परेट ग्रासलैंड यहाँ पे पाई जाती है. इट इज़ मेनली इन दी अर्जेंटीना में है. एंड देन यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है. अटाकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट एरिया है ऑफ द वर्ल्ड. डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं. एंड जो मैंने गैलापागोस आइलैंड बताया था वो इसमें याद रखना. इट इज़ होम ऑफ मैनी यूनिक स्पीसीज लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिशेस यहाँ पे मेनली रहते. ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स. देन अमेजोन रिवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस इज अमेजोन रिवर. अमेजोन रिवर इट इज़ अप्रॉक्स 6,500 किलोमीटर लॉन्ग फ्लो वाया ये पेरू और चिली से होते हुए पेरू और ब्राज़ील से होते हुए इट इज़ फाइनली फॉल्स इन द अटलांटिक ओशन. ये इंपॉर्टेंट है कि जो अमेजोन रिवर है दैट फ्लोज थ्रू दी यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील है और पेरू है. ये पेरू है और ब्राज़ील से होते हुए इट फ्लोज इन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में. ओके, एंड दिस होल रीजन इज नोन एज द अमेजोन बेसिन, पॉपुलेटेड बाय दी डेंसली फॉरेस्टेड एरिया, और इसको सेल्वास भी बोलते हैं. ओके, वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द नाइल रिवर जो अफ्रीका में है. उसके बाद इट इज़ दी इसलिए उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है. इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पे जैसे हैं अमेजोन की, दैट इज़ यहाँ पे तपाजस, देन मदेरा, देन पुरुष और जुरुआ. दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजोन रिवर. इसके अलावा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज़ द पराना रिवर. पराना रिवर इम्पॉर्टेंट है. देन एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है ऊपर, ओरिनोको रिवर है. ओरिनोको रिवर जो है दैट इस पे एंजल फॉल, तो वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल जो है वर्ल्ड का एंजल्स फॉल.
वो यहाँ पे है। ओके, एंड देन अगर हम इम्पोर्टेंट लेक्स की बात करें तो लेक माराकाइवो जो है, इट इज़ इन दी नॉर्थ ऑफ वेनेजुला। ये वेनेजुला है उसके नॉर्थ में है, एंड दिस लेक इज़ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। ओके, एंड देन एक लेक टिटिकाका भी है। ऊपर किसी मैप में शो हो रहा था लेक टिटिकाका, बिटवीन द बोलीविया एंड पेरू के बीच में है। यहाँ पे आप देखना, बोलीविया एंड पेरू के बीच में है दैट लेक। दिस, ये छोटा सा जो पार्ट दिख रहा है। ओके, सो बोलीविया एंड पेरू के बीच में है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट नेविगेशनल लेक इन द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग, हियर यू कैन सी लैटिन अमेरिका। तो अगर हम मैक्सिको और ये सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इस सारे रीजन को एक साथ कंबाइन कर दें तो दैट इज़ नोन एज द लैटिन अमेरिका। सो मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका विथ साउथ अमेरिका together known as the Latin America. That is it for the day, friends. I hope you like the video. Please do like, share, subscribe. Bye bye.